Welcome to video lecture series on reinforced cement concrete design. In last lecture we have seen analysis of singly reinforced beam. Now analysis means to find out for a given size, means width and depth of the beam, and also for given AST and given effective span, what is the moment of resistance or moment carrying capacity of the beam. That is known as analysis of the beam, right? And before doing the analysis we must know whether the beam is under reinforced, under reinforced section, balance section or over reinforced section. Okay, so we are carry forwarding the same numerical here also, but the width, depth, overall depth and then effective length is same. Also boundary condition is simply supported. The only thing we have changed is instead of 4 bars of 20 mm we have put here additional 2 bars of 16 mm. So let me add their bars. Okay, so we are adding here 2 bars of 16T or 16 mm. So in previous numerical there were only 4 bars of 20 mm diameter. Here we have added 2 and everything else is common, right? So now we will solve this numerical. So what is given first? So we will let me draw the diagram here. So a rectangular beam is given, right, with 4 bars of 20 mm diameter, right, and 2 bars of 16 mm diameter. 2 hanging bars are given, right. The width is given as 300 mm. Overall depth of the beam is given as 600 mm, whereas effective depth of the beam, which is at center, is given as, actually now in this case effective depth will be at the CG of this all bars, but for instance we are considering it at the center of bottom one. Okay, so whenever there are steel in 2 layers, in such case we have to calculate the CG of these bars and then we have to do the calculations, right? So for an instant we will consider that it is through the center of the bar and this is 550 mm. Okay, now CG कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इट इज़ वेरी सिंपल, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 जितने भी नंबर ऑफ बार्स है डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, बस यही प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है एंड देन यू कैन कैलकुलेट CG. और फिर वो जो CG है वो CG से आप वो ऊपर का डिस्टेंस ले लीजिए, दैट विल बी द इफेक्टिव डेप्थ. बट यहाँ पे अभी हम फॉर इंस्टेंट ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो कितना है, 550 है. ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे लेट मी राइट डाउन टू फाइंड क्या कैलकुलेट करना है, MR कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब ये जो बीम है ये बीम किसके लिए यूज किया गया है? ये बीम यूज किया गया है, लेट मी मेक इट स्मॉल. ओके, नाउ दिस बीम इज यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड वन with effective length is given L effective as 8 meter. Okay, and this is loaded with a UDL of say WD, right, design load. So this is given and we are interested to calculate moment of resistance. Okay, now so to do so what we will do, first we have to find out whether this is under reinforced or over reinforced section. द प्रीवियस वन, इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें सिर्फ 4 20 के बार थे, 2 16 के बार नहीं थे, दैट वाज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, राइट. अभी हम देखते हैं कि अंडर रेनफोर्स्ड है कि नहीं है. तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, XU. ओके, क्या फॉर्मूला XU का, 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCKB. चलो, तो अभी इसमें से अभी हम देखते हैं कि Fy कितना है.
तो जो Fy गिवन है वो है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो Fck है वो है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, व्हाट अबाउट AST? तो AST हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट मी राइट डाउन AST हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 416 के बाहर है, सो 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 2 16 के बाहर है, सो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वायर, राइट। सो इस पे से AST मिल जाएगा। लेट मी राइट डाउन AST हियर। सो AST इज इक्वल्स टू 1658.76 1658.76 mm स्क्वायर, राइट। सो वी गॉट AST नाउ। चलो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं सभी। सो 0.87, व्हाट इज Fy 415, AST 1658.76 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK 20 इंटू B 300। यहाँ पे से हमें एक XU की वैल्यू मिल जाएंगी, ये आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। सो XU की वैल्यू विल गिव 277.26 mm। अभी आपको ये समझना है कि ये XU की जो वैल्यू है ये किस चीज़ से कम ज़्यादा होती है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Fy कांस्टेंट है, FCK कांस्टेंट है, विड्थ कांस्टेंट है, और यहाँ पे ऊपर AST दिया है, यानी जितना AST बढ़ेगा उतनी XU की वैल्यू बढ़ते जाएंगी, राइट। और जितना ये AST कम होते जाएगा उतनी XU की वैल्यू कम होते जाएगी। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं XU मैक्स। सो XU मैक्स इज इक्वल्स टू, अभी अलग अलग वैल्यूज ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग वैल्यूज है, राइट। सो फॉर 415 वैल्यू ऑफ XU इज 0.48 D XU max, right? So 0.48. What about depth? Depth is 550. Okay, so we will get XU max is equals to 264. अभी अगर आप देखोगे तो इसके पहले के न्यूमेरिकल में भी XU max की वैल्यू 264 ही थी, राइट। और ये न्यूमेरिकल में भी XU max की वैल्यू 264 ही है। लेकिन पिछले न्यूमेरिकल में XU की वैल्यू जो थी वो कुछ अलग थी, क्योंकि स्टील हमारा कम था। यहाँ पे स्टील बढ़ गया इसलिए XU की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो अभी हम एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीम है और ये न्यूट्रल एक्सिस है जो है XU max, ठीक है, ये है XU max। तो इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमारा जो XU की वैल्यू थी यहाँ से पास हो रही थी, और ये न्यूमेरिकल में XU की वैल्यू यहाँ से पास हो रही है। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ XU1 और यहाँ पे मार्क करता हूँ XU2। जो XU2 है ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया ये न्यूमेरिकल के लिए, और ये जो XU1 था ये हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल के हमने कैलकुलेट किया था, राइट। अभी आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे AST बढ़ते जाएंगे ये जो X2 की वैल्यू है ये बढ़ते जाएगी। पहले कितनी थी? XU1 यहाँ थी, फिर AST बढ़ाया नीचे आई, जैसे जैसे AST बढ़ाएंगे ये बढ़ते जाएंगे, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू ये मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? XU max। इससे ज्यादा अगर हो गई तो दैट विल बी नोन एज ओवर एनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी हम चेक करते हैं वेदर आवर सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड और ओवर एनफोर्स्ड, राइट। अभी अंडर एनफोर्स या ओवर एनफोर्स है ये कैसे चेक करेंगे? तो XU और XU max को कंपेयर करेंगे, ठीक है। XU की वैल्यू कितनी है? 277.26 और XU max की वैल्यू कितनी है? 264। इसका मतलब ये केस में XU इज ग्रेटर देन XU max। प्रीवियस केस में उल्टा था, राइट। XU वाज लेस देन XU max। नाउ सिंस दिस इज ग्रेटर देन, हम बोल सकते हैं दिस सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और जब भी सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड होता है हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? CU इंटू Z। अगर अंडर रेनफोर्स्ड रहा तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? TU इंटू Z। ओके, सो CU का फॉर्मूला क्या है? 0.36 FCK
XU max into B. This is formula for CU. What about Z? Z is D minus 0.42 XU max. Right? So let me calculate this. So I will put 0.36, यहाँ पे हम 20. अभी यहाँ पे सी इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमने XU का यूज किया था और यहाँ पे हमें किसका यूज करना है? XU max का यूज करना है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. सो XU max कितना है? 264 into B. B is 300 into. What about D? D is 550 small d into 0.42 into 264. ये हो गया हमारा XU max. इस पे से हमारा MR कैलकुलेट हो जाएगा और वो जो MR है that MR is 250.4 किलो न्यूटन मीटर. इस पे से जो आपको MR मिलेगा वो 10⁶ के टर्म में रहेगा. अगर हम 10⁶ उसमें से निकाल लेते तो यू विल गेट इन किलो न्यूटन मीटर. राइट, सो दिस इज वैल्यू ऑफ MR. चलो, तो हमने MR तो कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये सेक्शन को अगर हमें बैलेंस सेक्शन बनाना है तो हम उसे बैलेंस सेक्शन कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो अगर हमें इसे बैलेंस सेक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे हमारे XU का. हमें पता है XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B. राइट, अगर मुझे इसको AST के फॉर्म में लिखना है तो AST के फॉर्म में कैसा लिखेंगे हम? 0.36 FCK B अपॉन 0.87 FY. ओके, और ये जो XU है ये XU यहाँ पे आ जाएगा. सो 0.36 FCK B इंटू XU max अपॉन 0.87 FY. राइट, अभी यहाँ पे हमने XU max का यूज किया, ये आपको ध्यान में रखना है. तो अब हम सब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. 0.36 FCK कितना है? 20. B कितना है? 300. XU max कितना है? 264. ओके, डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415. तो इस पे से हमें AST मिल जाएंगी और ये जो AST रहेंगी ये किसके लिए रहेंगी? बैलेंस सेक्शन करने के लिए. तो ये जो AST है ये AST है 1579.37 mm स्क्वायर. ओके, तो ये AST भी हमें हम ध्यान में रखना है. ठीक है, तो इसको हम साइड में ले लेते हैं अभी फॉर इंस्टेंस. ठीक है, तो ये जो हमारी पुरानी AST थी वो कितनी थी? हमारी जो पुरानी AST थी वो थी 1658 और अभी मॉडिफाइड AST क्या कर लिया हमने? कम कर लिया. कम इसलिए किया क्योंकि हमें सेक्शन को क्या करना था? बैलेंस करना था. और बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था आपको कि दिस इज XU max. राइट, और अगर हमने स्टील ज्यादा प्रोवाइड कर लिया तो ये XU यहाँ पे आ जाएगा जो है ओवर रेनफोर्स के लिए. दिस इज ओवर रेनफोर्स. अगर हमें XU को XU max या XU max से कम करना है तो वो केस में हमें क्या करना पड़ेगा? स्टील को कम करना पड़ेगा. जैसे ही हम स्टील कम करते जाएंगे ये वैल्यू ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ पे रहेगा तो बैलेंस, और इसके ऊपर रहेगा तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और इसके नीचे रहेगा तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन. ठीक है, अभी आप देखो मैजिक, आप ध्यान में रखिए कि MU कितना है हमारा. तो MU कितना है? 250.4. अभी हम फिर से कैलकुलेट करते हैं MU. तो अभी जब हम MU बैलेंस सेक्शन है MU कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पे MU और MR, राइट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू TU इंटू Z करके देखते हैं. ठीक है, क्योंकि मुझे AST का यूज करना है इसमें. सो TU के लिए क्या आ जाएगा? 0.87 FY AST इंटू
B minus 42 XUmax. ओके, सो 0.87 इंटू FI कितना है 415. अब ये AST यूज करेंगे 1579.37 मल्टीप्लाइड बाय D कितना है 550 माइनस 0.42 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ XUmax हियर. XUmax की वैल्यू कितनी है 264. डन. सो हियर वी विल गेट MR इज इक्वल्स टू 250.4 into 10 raised to power 6 Newton mm or 250.4 into 250.4 kilonewton meter. राइट. सो देखिए दोनों केस में हमें कितने मिले MR. कंक्रीट से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं और स्टील से भी कैलकुलेट करते हैं तो MR कितनी मिलेंगी सेम. क्यों? क्योंकि ये सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन है. अगर अंडर एनफोर्स सेक्शन या ओवर एनफोर्स सेक्शन रहता तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती. राइट. तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने सबसे पहले देखा कि वेदर इट इज अंडर एनफोर्स और ओवर एनफोर्स. तो हमें पता चला कि ये वो ओवर एनफोर्स सेक्शन है. फिर उस पे से हमने MR कैलकुलेट किया. राइट. फिर बाद में हमने फिर से उसको बैलेंस करने की कोशिश की. तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AST को कम करना पड़ेगा. राइट. फिर हमने AST कैलकुलेट किया और उसके ऊपर से फिर डबल से MR कैलकुलेट किया. तो वी गॉट दी सेम MR. राइट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद डिजाइन ऑफ बीम. The first two numericals were of analysis of singly reinforced beam, and from next lecture we will start with design of singly reinforced beam. We will continue with then doubly reinforced beam, then T beam, then we will go for slab, staircase and so on. Thank you.